Hello students. Today's topic of class 12th informatics practices is related with data visualization, and in today's topic we will see how to draw a histogram. In our previous topic video we have seen that how to draw a line chart and how to draw a bar chart. Today we will see first what is histogram and what are the required fields to be taken for drawing a histogram. From this topic you will be able to understand what is the difference between bar chart and histogram. So I will show you one picture here. This is a picture of your bar chart, and you can see there is a difference, there is a gap between a bar drawn for apple and drawn for orange. There is a gap in between these two bars, and in the same way in every bar there is a little bit difference it is showing. But if you look at this picture now, this is just looking like a bar chart, but this is not a bar chart because there is no difference between there is no gaps between the bars. So this picture or this chart cannot be called as bar chart. This is an example of histogram. So there is such difference between histogram and a bar chart. So if we need to draw a histogram, then I am taking one example here. First thing we need to import is import matplotlib dot pyplot as plt. I am taking a list here for some values, for example 1, 11, 24, 94. These such values I have taken in a list. So if I want to draw a histogram against this list of values, then I will use here plt.hist h here and in bracket. Now I will say plt.show. So you can see here one histogram has been drawn here. So this was a simplest example of drawing a histogram. But if you have some specific data of having some weight of some students, then we can draw a histogram for that data also. So I am taking one proper example for explaining the use of histogram here. So here is a question: write a program in Python for below is a grouped frequency table of the performance of the students that occurred in a class. एक गिवन क्लास में डाटा हमारे पास अवेलेबल है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि लेस देन 33 जो स्टूडेंट्स के परसेंटेज आए हैं वो हैं 2 बच्चों के. 33 से 50 के बीच में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने गेट किया है वो है 4, और 50 to 60% के बीच में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो 10 है. 60 to 75% की रेंज में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 12 हैं. इन दिस वे 75 and 85% के बीच में आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 15, एंड फॉर ग्रेटर देन 85% टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आर 17. So we need to draw a histogram for this kind of data. Then I will do the code for that, such as. अब एक लिस्ट में यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ जहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ एंटर की हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टेकिंग हेयर SC इक्वल टू 20, 40, 52, 72, 80, 90. Next list I am taking is here inter equal to. This is the value that you want to take the gap between the next bar, that is 75. ये जो मैंने फ्रीक्वेंसी परसेंटेज की जो रेंज है वो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग लिया है 85 and 95. यू कैन सी द क्वेश्चन हियर. 33 है,
33 से 50 के बीच में है, और स्टार्टिंग मैंने 10 लिया है। आप स्किप भी कर सकते हो स्टार्टिंग, अगर आपने 10 नहीं लिया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, 0 से थोड़ा आगे 1 से। एंड नेक्स्ट इज़ योर वेट मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम ले सकते हो, मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिया है WEI हेयर। ये है आपकी फ्रीक्वेंसी ही ले लेते हैं, मैं यहाँ पे FREQ ले लेती हूँ यहाँ पे। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपकी उस रेंज के अकॉर्डिंग लाई कर रहे हैं, सीक्वेंस में ही आपने देना है जिस सीक्वेंस में आपने अपने बिन्स दिए हैं। दिस इज़ योर बिन्स, एक तरह से बिन है आपका इंटर। मीन्स आपने जो डायग्राम में एक बार कहाँ से लेके कहाँ तक दिखाना है वो उसके लिए था। और नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। अब PLT डॉट हिस्ट, और हिस्ट में हमने देना है हमारे पहले लिस्ट को, दैट वाज अवर 20, 40, 52। और जितनी भी आपने फर्स्ट लिस्ट लेनी है, आपके जो वेट्स होंगे वो भी सेम होने चाहिए। फिर आप बिन्स की जगह पे ले रहे हो अपने इंटर को, और सिर्फ इतना करते हैं। एंड वेट्स मीन्स आपका जो गैप है वो कितना, वेट्स वैल्यूज़ आपकी कितनी शो हो उस पर। ओके, एरर है, हमने PLT लेना था, यहाँ पे PLY नहीं आना है। सो नाउ इफ़ यू से PLT डॉट शो, तो आपके पास एक हिस्टोग्राम आ गया है यहाँ पे ये। अब अगर इसमें आप फोकस करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन था और डायग्राम हमारे पास ये अवेलेबल है। हमारे पास लेस देन 33 में 2 थे, तो लेस देन 33 मीन्स अगर इसको जूम करेंगे हम तो ये लेस देन 33 की रेंज आ रही है। दिस वन, दिस इज़ लेस देन 33। लेस देन 33 में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 2। तो अगर हमने हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पे कुछ दिखाना है, तो एक्स एक्सिस के लिए मैंने क्या वैल्यू ली है, एक तरह से आप अब समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे मैंने क्या दिखाया था यहाँ पे 20, 40, 60 ये। तो जो एक्स एक्सिस पे दिखाया है डाटा उसने वो यहाँ इससे दिखाया है SC से। और फिर वाई एक्सिस पे हमारे पास जो दिखाया है इसने वो वेट्स से दिखाया है 2, 4, 10 मीन्स ये डाटा हमारे पास विजिबल हुआ है वाई एक्सिस पे। हमारे पास 10 to 33 के बीच में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे? 2। तो इसने क्या किया है 10 to 30 के बीच में मीन 33 मतलब ये 33 के बीच में हमारे पास 2, इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2। फिर नेक्स्ट रेंज जो थी हमारे पास वो थी 33 to 55 के बीच में। तो यहाँ से 33 शुरू हो रहा है और यहाँ पे 55 इसके बीच में कहीं पे 55 आ रहा है। वहाँ तक हमारे पास कितने स्टूडेंट्स टोटल? 4। तो इसने हाईलाइट किया है यहाँ पे इस लाइन को, मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं? 4। और जो नेक्स्ट है 50 से 60 के बीच में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास 10 है। तो यहाँ से 50 शुरू हो रहा है और यहाँ पे 60 के बीच में 50 to 60 मीन्स दिस इज़ 50 to 60 के बीच में 10। नेक्स्ट रेंज में 12 थे, उससे नेक्स्ट रेंज पे हमारे आ रहे थे 15। तो ये 15 है और ये 17। सो इन दिस वे हिस्टोग्राम कैन बी drawn. This was a simple example of explaining how histogram can be drawn here. So in our next video we will see what are the various functions that can be used over formatting on a chart. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी चार्ट का लेबल ड्रॉ लगाना है या एक्स एक्सिस पे कुछ दिखाना है, कोई लेबल वाई एक्सिस पे दिखाना है, कलर चेंज करना है बार्स का, तो वो सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन यू प्रैक्टिस दिस एंड बाय।